Mrs. Shamamatul Ambar Arbab, who's one of the board of directors for ODGCL. How are you, Miss Arbab? I'm good, thank you very much. It's OGDCL, Oil and Gas Development Company Limited of Pakistan. 10,000 लोग काम करते हैं और आप उस कंपनी की बोर्ड मेंबर हैं. ये अल्लाह का बहुत शुक्र है और अल्लाह ताला ऐसे मौके मैं कहती हूँ बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि इस तरह की चेंजेस ला सकें. ऐसा चेंज लें जिससे आने वाली नस्लों को और आपके मुल्क को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हो सके. Opportunities for women in Khyber Pakhtunkhwa as well? Yes, of course. If women, there are lots of opportunities. Opportunities need to be grabbed because they're not lost. They're taken by someone else. वो पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गई. Constantly, there is no end to seekna. There is no end to learning. So you should continue to learn. And learning and your knowledge is your strength. और आपकी अपनी कंपनी भी है यूरो इंडस्ट्रीज के नाम से. Rather than focusing on my company, something that is going to help a few people, few of our employees or my family, I have to make a difference in this world because that's the reason I'm sent to this world. क्या खातून, लड़की या औरत होने से कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, I've always felt the strength. मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ, we are biologically stronger. Yes. There is this thinking that women can't be on top because they are way too emotional. Emotions तो एक strength है. Empathy एक strength है. EQ is a strength. You see, emotional quotient आ गया है. What about women empowerment in ODGCL? Male champions बैठे हुए हैं. जफर मसूद साहब को आप जानती हैं, लव साहब को आप जानती हैं, मेरे board members हैं. Highly career oriented women who so want to be like you. If she wants to become a leader, she has to create more leaders. उसके बगैर अकेला नहीं चल सकती. Your message of hope and optimism for all the young girls. Always look at the positive things in your life because when you look at the positive things, the positive hormones are released and then they make you stronger and they make things easier for you. वजूदे जन से है कायनात में रंग. और आज मैं नाजिया खान बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे वुमेन CEO क्लब पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खातून मिली है जो कि 14,000 लोगों की कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. सो प्लीज वेलकम मिसेस शमामातुल अंबर अरबाब, who's one of the board of directors for ODGCL. How are you, Miss Arbab? I'm good, thank you very much. It's OGDCL, Oil and Gas Development Company Limited of Pakistan. Yes, one of the largest company of Pakistan. Alhamdulillah. 14,000 लोग काम करते हैं और आप उस कंपनी की बोर्ड मेंबर हैं. कैसा लगा? ये अल्लाह का बहुत शुक्र है और अल्लाह ताला ऐसे मौके मैं कहती हूँ बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि इस तरह की चेंजेस ला सकें. और बोर्ड पे बैठने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक ऐसा चेंज लें जिससे आने वाली नस्लों को और आपके मुल्क को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हो सके. अभी लोगों आपको ये नहीं पता कि सिर्फ ये हैं ODGCL की बोर्ड मेंबर तो है मगर ये खैबर पख्तून के इलाके से हैं. ये सुन के तो आई एक्चुअली वाज सो high and I was on cloud 9. Seriously, ma'am, how all this happened? So, of course, Alhamdulillah, Allah का बड़ा शुक्र है. I'm from Khyber Pakhtunkhwa, जिसको KP भी कहते हैं. और I was born there, I was brought up there, I studied there. और वही मेरी मेन जगह है जिधर से मुझे ये मौका मिला और मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया to step out and follow a purpose in life. Let me rephrase it. You said that you got the confidence from KPK? Yes, of course. Being a woman and being from the KPK, you got the confidence from there. Of course. Although there are so many taboos attached कि भी वहाँ की औरत तो पढ़ती नहीं है, वहाँ की औरत को आज़ादी नहीं है, वहाँ की औरत काम नहीं कर सकती. What do you say about that? देखिए मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस मिला. मुझे वहीं से I've learned to command respect. That is from my area, from my culture. उन्होंने मुझे बताया कि रिस्पेक्ट कैसे ली जाती है और कैसे दी जाती है. वहाँ पर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. मुझे नहीं लगता, मैंने कुछ अर्सा बाकी सूबों में भी काम किया है. आई एम श्योर उधर होगी, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जितनी रिस्पेक्ट ख़वातीन को खैबर पख्तूनख्वा में मिलती है उतनी कहीं और पाकिस्तान में नहीं मिलती. But
but are there opportunities for women in Khyber Pakhtunkhwa as well? Yes, of course. If women, there are lots of opportunities. Opportunities need to be grabbed because they're not lost. They're taken by someone else. So you have to know how to take the opportunities, and opportunities are there in the ecosystem. Yes. Khyber Pakhtunkhwa वाली बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं कि काश वो लड़का होती हैं, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती. ये बिल्कुल गलत फहमी है. मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ. मेरा भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है. और मेरे वालिद जो कि वहाँ के गांव बुधाई से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ग्रेट मैन, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर मेरी एक औलाद होनी थी तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि वो बेटी है. तो ये एक पेशावर के KP के गाँव के एक साहब ये बात अगर कर सकते हैं तो आप खुद सोच सकती है कि वहाँ की थिंकिंग कैसी है. फिर पेशावर में हमें CEOs खवातीन क्यों नहीं मिलती? देखिए, मैं आपको बताती हूँ. देयर आर टू थिंग्स. ओके, अपॉर्चुनिटीज का जो बात है ना, वो दे यूजुअली टेकन अप बाय समवन एल्स. सो KP जो है वो ग्रोथ में पीछे है. वहाँ पर वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ बन नहीं रही, वो बाकी जगहों पे जा रही हैं. लोग स्टेप आउट करें, देयर इज ब्रेन ड्रेन टेकिंग प्लेस. बट हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट से दैट इट इज़ किसी तरह से किसी की कॉन्फिडेंस और जो अपॉर्चुनिटीज़ बनाने का जो उधर मैकेनिज़्म है वो कम है, वो कमज़ोर है. इट्स जस्ट दैट हमारा सूबा थोड़ा सा पीछे है. सूबे के पीछे होने से लोगों के माइंड सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और पता है आपको ये कितना खाम ख्याली है शायद हम सब बाकी पाकिस्तानियों की, बाकी सूबे वालों की, कि आपका इलाका अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करता. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सपोर्ट भी करता है. और बाज़ दफ़ा फार फ्लंग एरियाज़ में लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलीजन और कल्चर को कंफ्यूज कर जाते हैं. तो बाज़ दफ़ा बहुत फार फ्लंग एरिया जो कि हमारे हालात ऐसे रहे हैं, आपने देखा है कि किस किस्म की टेररिज्म रहा है, उसमें उनको सिक्योर करने के लिए कई दफ़ा वो लोग कहते हैं कि बच्चियां बाहर ना निकलें. बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद देयर माइंडसेट अगेंस्ट वुमेन. वो सिर्फ बचाने के लिए, छुपाने के लिए, संभाल के रखने के लिए, क्योंकि लड़कों को हम सख्त जान कंसिडर करते हैं और इनको हम चाहते हैं कि इनको बचा के रखें बच्चियों को. मैं भी, मेरी भी बेटियां हैं, 2 और 1 बेटा, और मैं बेटी को रात को 12 बजे ड्राइविंग पे नहीं अलाउ करते. वो आज वो बाहर पढ़ने के लिए गई हुई हैं दोनों, लेकिन वो कहती हैं आप हम जब वापस आते हैं तो आप मुझे 11-12 बजे हमें ड्राइव नहीं करने देती, भाई को ड्राइव करने देती. मैं कहती हूँ उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आप में किसी किस्म की कमी है. हम आपको ज़्यादा बचा के रखना चाहते हैं. ये हमारा लव एंड केयर है. और यही लव एंड केयर हमारे रिलीजन में भी है कि खातून की इज्जत करना, उस पर किसी किस्म की ब्रेड विनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको अंदर रखना चाहते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहते, वो उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, हमारा रिलीजन भी नहीं डालना चाहता. शमामा, खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की ने पहले वहाँ पढ़ा लिखा, उसके बाद उसने वहाँ पे काम किया और उसके बाद वो मुल्कों फिरी अपनी पढ़ाई के लिए या अपने तजर्बे के लिए, और फिर वो पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गई. कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल है, पढ़ना है, आपने सीखना है. मुझे मेरे हस्बैंड हमेशा शुरू में जब व्हेन आई स्टेप्ड आउट, थिंग्स वर थोड़ी सी, एक यंग लड़की को बाहर निकलने के लिए मुश्किल होता था. ज़ाहिर है मुझे ख्याल से निकलना होता था, चादर में निकलना होता था. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे फादर और मेरे हस्बैंड का ये था कि सीखती रहो, सीखना नहीं स्टॉप करना. कॉन्स्टेंटली देयर इज़ नो एंड टू सीखना, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग. सो यू शुड कंटिन्यू टू लर्न, एंड लर्निंग एंड योर नॉलेज इज़ योर स्ट्रेंथ. सो ये मैं जो आपने कहा मुल्को, ये मैंने अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो सारी पेशावर और पेशावर यूनिवर्सिटी में की है. लेकिन उसके बाद मैंने स्टॉप नहीं किया. मुझे जिधर लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं वहाँ पे सीखा है और मैं उसको लेके वापस आई हूँ. सो ये मेरी रिक्वेस्ट सब ख़वातीन से है कि अपने लर्निंग को स्टॉप ना करें. आपने लर्न करते रहना है, बिकॉज यही आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है और यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और यही आपके अंदर ताकत लाता है टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस वर्ल्ड. और आपकी अपनी कंपनी भी है यूरो इंडस्ट्रीज़ के नाम से, तो अब आप क्या सोचती हैं कि अब आगे आप क्या करेंगी? अब मैं आगे, देखिए मैंने बहुत अरसे पहले अपना आगे डिटर्मिन कर लिया था. मैं हंसती हूँ कि मैंने अपने आप को अपनी कंपनी में खुद ही ग्रेजुएट करके
वो वर्क से लेके मैंने अपने आप को पॉलिसी मेकिंग पे ले आई, खुद बखुद ही अपने आप को ग्रेजुएट कर दिया, और जो बाकी काम है मेरे हस्बैंड हैंडल्स एवरीथिंग, लेकिन जिधर पर स्ट्रेटेजिक बात आती है, यहाँ पे कोई पॉलिसी की बात आती है, वो मैं खुद करती हूँ, और वो मैं चाहती हूँ, मैं खुद इन द सेंस कंपनी में खुद नहीं करती, कंपनी में मिलजुल के हम करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अब वी हैव टू मेक अ बिगर डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड रादर देन फोकसिंग ऑन माई कंपनी, समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प अ few people, few of our employees or my family. I have to make a difference in this world because that's the reason I'm sent to this world, and that's the reason each one of you are sent to this world to make a bigger difference. आपने ये तो बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा से होने से आपको कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खातून, लड़की या औरत होने से कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज फेल्ट द स्ट्रेंथ। मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ वी आर बायोलॉजिकली स्ट्रोंगर, वी आर अपने अंदर कोई मसला नहीं है। वो द वे माई फादर ब्रॉट मी अप, द वे माई मदर ब्रॉट मी अप, और मैं बार बार कहती हूँ कि ये बैकवर्ड एरिया के लोग हैं जिन्होंने ऐसी बच्चियाँ उठाई। ऐसी एग्जैक्टली। सो पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। येस, इर्द गिर्द के लोग रेडी नहीं थे उस वक्त। आप सोचें आज से 30 साल पहले पीपल वर नॉट रेडी टू सी अ वुमन स्टेपिंग आउट, बट टुडे द सेम पीपल आर वेरी सपोर्टिव, एंड वो अपने घर के बच्चों को भी अभी स्टेप आउट करने दे रहे हैं। ठीक है, सो इट्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Not only in Pakistan but globally there is this thinking that women can't be on top because they are way too emotional. Yes or no? देखिए जी, इमोशंस तो एक स्ट्रेंथ है, एम्पथी एक स्ट्रेंथ है, EQ इज़ अ स्ट्रेंथ। यू सी इमोशनल कोशेंट आ गया है, IQ के से आ गया, EQ आ गया, दैट्स अ स्ट्रेंथ। वी शुड यूज़ आवर इमोशंस एज अ स्ट्रेंथ, और वेयर देयर इज़ अ नीड वी शुड कीप आवर इमोशंस असाइड एंड मेक यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस। सो वी हैव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ विद अस, वी यूज़ इट एज अ स्ट्रेंथ। Let's talk about ODGCL now. How long you have been with ODGCL? 3 years plus. What about women empowerment in ODGCL? माशाल्लाह OGDCL में विमेन एम्पावरमेंट पे हमने बहुत काम किया है, और मेरे साथ मेरी सारी टीम ने बहुत काम किया है। और मैं ये आपको बताऊं कि बड़े काम अकेले नहीं होते। मेरे साथ मेल चैम्पियंस बैठे हुए हैं। ज़फ़र मसूद साहब को आप जानती हैं, लक साहब को आप जानती हैं, मेरे बोर्ड मेंबर्स हैं, रियाज साहब हैं, जांज़ेब दुरानी साहब हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट के ऑफिशल्स होते हैं, जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब की सपोर्ट के साथ बहुत चेंज आया है। हम लोगों ने DEI की पॉलिसी, डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन की पॉलिसी फर्स्ट टाइम रोल आउट की इस सेक्टर में, कहीं पर नहीं हुई भी ये चीज़। ESG का हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट कर ली है, जो कि सेक्टर में किसी ने की ही नहीं है। सो इन सब ESG, DEI, ये सब चीज़ विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है। हमने पॉलिसीज़ जो निकाली उसमें सपोर्टिंग पॉलिसीज़ भी की हैं, जिसमें उनके लिए जो एम्पावर कर रहे हैं हम ख़वातीन का नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनको इंक्लूड कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, उनका नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने वर्क फोर्स में। उसमें उनकी जितनी सपोर्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम साथ लेके जा रहे हैं। आजकल की यंग बच्ची बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी खूबसूरती की तरफ माइल है, और वो ये समझती है कि ज़्यादा खूबसूरत दिखना या ज़्यादा लिबरल हो जाने में तरक्की है। क्या समझाएं हम उस बच्ची को? देखिए, यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी, यू नो, नॉट एट। ये गलत कर रहे हैं बच्चे। अच्छा दिखना, खूबसूरती बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को अच्छा कैरी करें, बट दैट शुड नॉट बी द मेन थिंग। इट्स द इनर सेल्फ। व्हेन यू ओपन, बहुत खूबसूरत लड़की जब मुंह खोले और उसमें, या कोई बहुत हैंडसम लड़का जब मुंह खोलता है और उसके मुंह से कोई बेकार बात निकलती है, तो होल इमेज कलम्स। ठीक है, सो आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन इट शुड बी कपल्ड विद गुड नॉलेज, with your character strength also. उसके बगैर you can't make a place, longer place नहीं रहेगी। short term तो हो जाएगा, लेकिन long term में कुछ भी नहीं बनेगा। आप 20 साल बच्ची को क्या मशवरा देंगे? 20 साल बच्ची को ये कहूँगी कि बेटे रिलैक्स करो, get aligned with your inner self, देखो कि आपने क्या करना है लाइफ में, बट कीप इन माइंड दैट you're not sent to this world to just live and enjoy life. You've come to this world to make a difference, to bring a difference in this world. So कोशिश करें कि अपनी खुशी
अच्छे कामों से हासिल करें. Your happiness should come from good things, good purpose in your life, making others happy. What advice you would give to a highly career-oriented woman who so want to be like you? देखें जी, she has to stay, again I'll say, aligned with her inner self and not take head on with anyone around her. She has to build a team. If she wants to become a leader, she has to create more leaders. उसके बगैर अकेला नहीं चल सकती. She has to make space for other women. If she does not make space for other women, she will not be able to sustain it. Do you read books? Yes. 2 books that are close to your heart. My own father's books. एक उनकी अकीदतें हैं जो कि जिसमें हमद और नाते हैं जो कि दे आर वेरी वेरी कैथार्टिक, जिनको पढ़ के मेरी एनर्जी भी आती है एंड कैथारसिस होता है बहुत ज़्यादा. Do you watch Netflix or dramas or anything? ड्रामाज हम देखते हैं, हम टीवी का दैट्स आवर रिलैक्सिंग टाइम. अच्छा, okay. ग्रीन एंटरटेनमेंट के भी कुछ ड्रामे हैं जो हम रिलैक्स करते, दैट्स आवर रिलैक्सेशन. Any hobbies of yours? I am a DIY person. Oh. अगर so I make impossibles possible. That's my hidden talent. Yeah, that's my open talent. Everybody knows I am a plumber. Oh. I'm a seamstress. I'm a painter. I'm a ये जो क्या बनाता है कुर्सियाँ जो बनाते हैं. Carpenter. I'm a carpenter. मेरे पास सारे टूल्स हैं घर में. हाँ. So मैं सब कुछ करती हूँ. कुछ भी कर लेती है. हाँ, घर में किसी को बुनाने के लिए ज़रूरत नहीं है और सब टूल्स ही मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैं यूज़ नहीं भी करती वो मैं ख़रीद के रख लेती हूँ. गुस्सा बहुत आता है या नहीं आता? नहीं, गुस्सा मैंने हैंडल कर लिया है, अब बिल्कुल भी नहीं आता. कोई दैट्स अ वीकनेस. कोई टिप कैसे हैंडल किया? अच्छा, फॉर स्टार्टर्स जब गुस्सा आए तो उल्टी गिनती शुरू कर दें. ठीक है, और वैसे पे सोचो कि गुस्से से क्या फ़ायदा, बिकॉज जब भी आप गुस्सा करते हैं मैंने देखा कि गुस्से के फ़ौरन बाद एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको अंदर होती है, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी होती है गुस्से से. सो ट्राई टू कंट्रोल योर गुस्सा, उस तकलीफ़ से बचने. योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर ऑल द यंग गर्ल्स इन द कैमरा. बेटे, इट इज़ होप. होप के बगैर तो ज़िंदगी नहीं चलती. सो जस्ट स्टे होपफुल. अल्लाह ताला इज़ देयर. अल्लाह ताला के बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं. Always look at the positive things in your life, because when you look at the positive things, the positive hormones are released and then they make you stronger and they make things easier for you. How I would like to end up my interview by saying that I actually pray from Allah to have more Shamamas in Pakistan. Thank you so much, Shamama Arbab, for coming to the show. Thank you, very kind.